Hello everyone, I am Kanika Sharma. Welcome back to my channel Pharmacy Solution. In the last video of tablets, we discussed about the introduction to tablets, advantages, disadvantages, and we have discussed only a brief introduction about the excipients. In this video, we will talk about the diluents in detail. So let's begin. So what are diluents? डायलुएंट्स बेसिकली इनको हम फिलर्स भी कहते हैं एंड वाई दे आर एडेड एज एन एक्सिपिएंट इन दी टैबलेट फॉर्मुलेशंस. टैबलेट्स में हम क्यों डायलुएंट्स का यूज़ करते हैं? बिकॉज जब आपकी जो डोज होती है ड्रग की वो बहुत कम होती है, राइट जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जब उसकी जो डोसेज है वो बहुत कम है तो क्या करा जाता है? इन ऑर्डर टू मेकअप द वॉल्यूम, in order to make up the bulk, right, so that it can be formulated into tablet, it can be compressed and also to make it suitable for handling, right, because अगर आपकी एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो डोसेज है वो बहुत कम है, राइट, सो क्या होगा कि उसको आपको अगर आप उसको एज सच कंप्रेस करोगे तो इट विल नॉट बी एबल टू कंप्रेस, और उसको मोर ओवर आपको हैंडलिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होगी. सो उसको बल्क अटेन करने के लिए इन ऑर्डर टू मेक अप द रिक्वायर्ड बल्क वी यूज टू ऐड diluents. We used to add some substances which are called diluents or fillers. Like the dosage of the potent drugs, is very low. Potent drugs जो होते हैं, what are the potent drugs? Potent drugs are those drugs जिनको क्या होता है, जो कम concentration में क्या करते हैं, एक गिवन रिस्पॉन्स कम कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस करते हैं, राइट. सो जो आपके पोटेंट ड्रग्स होते हैं उनकी डोज बहुत कम होती है बिकॉज वो कम डोज पे ज़्यादा एक्शन शो करते हैं. सो इन ड्रग्स को बेसिकली जो लो डोज होते हैं इनमें क्या करना पड़ता है, हमें पोटेंट ड्रग्स में एक ऐसा सब्सटेंस डालना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक इंक्रीज द बल्क वॉल्यूम, right, and to increase the size of the tablet. So these substances which are added to make up the bulk of the tablet, right, these excipients, these substances are known as diluents. Okay, now if the dose of the drug per tablet is high, then we may not require the filler, right. So the filler is not necessary in that cases when the dosage of the drug per tablet is high. फॉर एन एग्ज़ाम्पल जो डेक्सामेथासोन होता है उसमें 0.75 mg स्टेरॉइड होता है पर टैबलेट, राइट. तो हम 0.75 mg की अगर टैबलेट बनाएंगे सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हैंडलिंग पर्पस एंड ऑल्सो फॉर द कंप्रेशन पर्पस, राइट. सो वी यूज टू एड diluents in it to make up the required volume, to make up the bulk volume and in order to make tableting possible. Okay, and as I said that if the dose of the drug is high then we may not require the diluents. So as in the examples of the aspirin and certain antibiotics, the dose is sufficiently high that no filler is required or no diluent is required. Fillers are diluents. Now what should be the ideal requirements, ideal characteristics of a diluent? Okay, so first of all it should be non-toxic, right, and it should be acceptable to the regulatory agencies in all the countries. Okay, moreover उसकी जो cost है वो कम होनी चाहिए, it should not be expensive, it should be non-hygroscopic. Now what is the meaning of the non-hygroscopic? Hygroscopic substances are those substances which readily absorb moisture from the surroundings. So जो हमारा diluent होना चाहिए वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि वो moisture को absorb कर ले from the surroundings. Okay, it should possess good biopharmaceutical properties. It should be water soluble. अगर वो water soluble नहीं होगा तो उसके dissolution में बहुत problem आएगी. So it should be water soluble. It should have acceptable taste. उसका taste acceptable होना चाहिए. And ये जो भी डाइलुएंट हम यूज़ कर रहे हैं, मोर ओवर जो भी आप एक्सिपिएंट यूज़ कर रहे हो, नॉट ओनली डाइलुएंट बट जितने भी आप दूसरे एक्सिपिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, फिजिकली और केमिकली स्टेबल होने चाहिए.
एक तो वो खुद केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल होने चाहिए। मोर ओवर जब आप उनको दूसरे एक्सिपिएंट्स के साथ या फिर जो भी आपके ड्रग है उसके साथ जब कंबाइन करो तब भी वो फिजिकली एंड केमिकल स्टेबल होने चाहिए। इट शुड नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द कंपोनेंट। ओके, इट शुड बी कलर कंपैटिबल होना चाहिए। मोर ओवर वो कोई भी अगर जैसे हमने एक डाइल्यूएंट ऐड करा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी तरीके से क्या करे, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी बायोअवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम करे, राइट। बायोअवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, जैसे कि कुछ अगर हमने कोई ऐसा डाइल्यूएंट डाल दिया जिसने ड्रग के साथ या किसी और दूसरे एक्सिपिएंट के साथ क्या कर लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया, राइट। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी रिटार्ड हो सकती है, एज इन द केस ऑफ द टेट्रासाइक्लिन, राइट। जो टेट्रासाइक्लिन है अगर उसमें हमने कैल्शियम का डाइल्यूएंट ऐड कर दिया कोई, सो व्हाट विल हैपन, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिससे उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। सो कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस डाइल्यूएंट का कि वो अफेक्ट करे उस प्रोडक्ट की बायोअवेलेबिलिटी पे। ओके, then it should be free of any unacceptable microbiological load and अगर जो हमारी ड्रग है, जो हम ड्रग बना रहे हैं जिसमें हम डाइल्यूएंट ऐड कर रहे हैं, अगर वो ड्रग जो है वो क्या है, वो क्लासिफाइड एज अ फूड, कि वो कोई फूड है, जैसे कि कोई विटामिन है, राइट। अगर हम कोई विटामिन की टैबलेट दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि जो भी डाइल्यूएंट है या जो भी हम दूसरे एक्सिपिएंट्स उसमें ऐड करेंगे इन दैट फॉर्मुलेशन ऑफ दैट ड्रग जो कि क्या है क्लासिफाइड एज फूड, तो उस डाइल्यूएंट का क्या होना चाहिए, एक अप्रूव्ड डायरेक्ट फूड एडिटिव होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। इट शुड बी अप्रूव्ड डायरेक्ट फूड एडिटिव। देन जब भी हम कोई नई ड्रग बनाते हैं, राइट, कोई भी हम एक नया थेरेपेटिक एजेंट की फॉर्मुलेशन करते हैं, ओके, सो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि जो हम डाइल्यूएंट उसमें ऐड कर रहे हैं वो क्या है, उस ड्रग के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, राइट। जैसे कोई हम एक ड्रग बना रहे हैं, एक नया थेरेपेटिक एजेंट बना रहे हैं, एक नई ड्रग की फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, नाउ वी आर डिसाइडिंग कि इसमें हम ये डाइल्यूएंट डालेंगे, ओके। तो वो हमें पहले ये देखना होगा कि वो ड्रग जो है वो कंपैटिबल है विद द डाइल्यूएंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, ओके। ये देखना है क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें क्या हो जाता है कि डाइल्यूएंट और ड्रग या किसी एक्सिपिएंट की वजह से, अगर डाइल्यूएंट या किसी और एक्सिपिएंट की रिएक्शन की वजह से या डाइल्यूएंट एंड ड्रग की रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसमें बायोअवेलेबिलिटी रिटार्ड हो जाती है उसकी, ओके। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया एग्जांपल, टेट्रासाइक्लिन प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें क्या करा, कैल्शियम फॉस्फेट एज अ डाइल्यूएंट ऐड कर दिया। सो यू ऑल नो कि जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं उनकी एफिनिटी होती है कि वो क्या करते हैं, मेटलिक कैटाइंस के साथ लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके साथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, चीलिट्स बना लेते हैं, राइट। सो इसलिए क्या होगा, उसकी जो अब आपका प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो क्या है, हाफ है ऑफ दैट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। अगर हम कोई और डाइल्यूएंट यूज़ करते तो जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी होती उससे क्या है, हाफ है, अगर हमने कैल्शियम सल्फेट को यूज़ करा टेट्रासाइक्लिन के साथ। क्यों, क्योंकि उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया और उसकी बायोअवेलेबिलिटी रिटार्ड हो जाएगी, ओके। देन द सेकेंड इज एक्चुअली इट इज़ अ वेरी कॉमन जो कि बहुत टाइम तक अननोटिस्ड रहा, क्योंकि लैक्टोज जो है वो एज अ डाइल्यूएंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी फॉर्मुलेशंस में। एंड क्या देखा गया कि जो आपका अमीन ड्रग्स हैं, ओके, जो अमीन ड्रग्स हैं उनको अगर हमने उसमें अगर हमने क्या करा, डाइल्यूएंट जो है वो लैक्टोज यूज़ करा और एक और एक्सिपिएंट होता है लुब्रिकेंट, ओके। अगर हमने उस लुब्रिकेंट में कोई मेटल स्टीयरेट यूज़ करा, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम स्टीयरेट यूज़ करा, सो क्या हो रहा था कि टाइम के साथ वो जो ड्रग थी वो क्या हो रही थी, डिसकलर हो जाती थी, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपैटिबिलिटी जो हमें चेक करनी चाहिए, क्योंकि देखो जो अमीन ड्रग्स हैं हमने क्या करा, उसमें डाइल्यूएंट लैक्टोज ऐड करा और लुब्रिकेंट हमने मैग्नीशियम स्टीयरेट ऐड करा। सो क्या हुआ, उससे जो प्रोडक्ट है वो क्या हुआ, डिसकलर हो रहा था टाइम के साथ, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज़ कि जो भी आपके ड्रग सब्सटेंसेस जिनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती है, ओके, तो उसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि हम क्या करें,
वाटर सॉल्युबल ही डाइल्यूएंट यूज़ करें। अगर उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी जो है वो कम है, सो हम उसमें क्या करें, अगर उस वाटर सॉल्युबिलिटी उसकी कम है उस ड्रग की, तो अगर हम उसमें डाइल्यूएंट भी वाटर इनसॉल्युबल ही ऐड कर देंगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, उसमें वाटर सॉल्युबल डाइल्यूएंट्स के यूज़ को क्या किया जाता है, रेकमेंड किया जाता है इन ऑर्डर टू अवॉइड दी बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स। देन जो ड्रग्स कम डोसेज में दी जाती हैं, लाइक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स, तो इनमें क्या होता है कि इनमें हम अवॉइड करते हैं कि हम हाईली एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस लाइक कायोलिन, बेंटोनाइट, इनका यूज़ ना करें। बिकॉज क्या होता है कि जो ड्रग होगी वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब हम ड्रग लेंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हम ये क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि जब हम टैबलेट्स बना लें ड्रग्स की जो कि स्मॉल डोसेज में यूज़ करी जाती हैं, लाइक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स, उनमें हम हाईली एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस का यूज़ ना करें। ओके, नाउ यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, यू नो अबाउट द यूटेक्टिक मिक्सचर्स। यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कैम्फर है, थाइमोल है, राइट। इनको जब हम एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो क्या करते हैं, ये लिक्विफाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनमें रिडक्शन हो जाती है जब हम इनको एक क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। ओके, सो व्हाट हैपन्स कि अगर आपने किसी टैबलेट को बनाने में हमने क्या करा कि जो हमने कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो आपके यूटेक्टिक मिक्सचर बना सकते हैं। ओके, या आप इसको ऐसे समझो कि अगर कोई ड्रग है, ठीक है, अगर कोई ऐसे फॉर्मुलेशन में हम ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जब हम टैबलेट बना रहे हैं तो जो हम कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें जो एक्सिपिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, अगर कोई दो ऐसे हैं जो कि क्या कर सकते हैं, आपके यूटेक्टिक मिक्सचर्स बना सकते हैं। ओके, तो अगर जैसे कैप्सूल है, अगर कैप्सूल में हमने उनको डाला एज अ पाउडर, अगर हमने उनको डाला तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है। वही अगर आप उसे टैबलेट फॉर्म में करोगे, टैबलेट फॉर्म में हम उसे कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट बनता है। तो क्या होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रॉब्लम के इन केस ऑफ दी फॉर्मुलेशन कंपोनेंट्स जो कि केपेबल होते हैं फॉर्मिंग द यूटेक्टिक मिक्सचर्स, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हम कैप्सूल में करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट क्योंकि हम टैबलेट में कंप्रेस कर रहे हैं उसको और कॉम्पैक्ट बना रहे हैं, तो क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, अनएक्सेप्टेबल हो जाती है वो टैबलेट। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ द इंटरेक्शन जो कि क्या होता है कि टैबलेट्स में इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत इंटीमेट कॉन्टैक्ट में होते हैं, राइट। और क्या होते हैं, टाइटली कंप्रेस्ड होते हैं एक साथ, इस वजह से क्या हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाती है और अनएक्सेप्टेबल हो जाती है। ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस डाइल्यूएंट्स जो कि यूज़ करे जाते हैं हमारे टैबलेट्स में। लैक्टोज, ड्राई स्टार्च, सेलुलोज, कायोलिन, मैनिटॉल, पाउडर्ड शुगर, कैल्शियम सल्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट एंड द सोडियम क्लोराइड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टार्च। जो स्टार्च है ये हमें कॉर्न से भी मिल सकता है, वीट से, पोटैटो से, ये जिनसे भी मिलता है। ये क्या होते हैं, ये ओकेजनली यूज़ किया जाता है स्टार्च को एज अ टैबलेट डाइल्यूएंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक है स्टार RX 1500। ओके, ये एक स्टार्च है जो कि क्या है, एक फ्री फ्लोइंग और डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च? एक्चुअली डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च या जो भी डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, वो बहुत ही कम डिफ़िकल्टी से क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं बहुत कम डिफ़िकल्टी से। ओके, मतलब उनको कंप्रेशन में, उनके कॉम्पैक्शन में हमें इतने ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। इवन जब हम उनको दूसरे एक्सिपिएंट्स के साथ या ड्रग भी अगर उसमें थोड़ी बहुत ऐड करते हैं तो भी वो क्या होते हैं, वो उनकी जो कंप्रेशन कैपेसिटी होती है वो मेंटेन रहती है। ओके, तो ये जो स्टार RX 1500 है ये एक डायरेक्टली कंप्रेसिबल और फ्री फ्लोइंग स्टार्च है
इसको एज अ डाइलुएंट भी यूज़ किया जाता है, बाइंडर भी यूज़ किया जाता है और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है. एंड बाइंडर्स एंड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होता है वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस. बट ये डाइलुएंट, बाइंडर और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरीके से यूज़ किया जाता है. वन मोर पॉइंट अबाउट स्टार RX इज कि इसमें 10% मॉइस्चर होता है. ओके तो अगर हम इसको 0.5% से ज़्यादा मैग्नीशियम स्टीरेट से कंबाइन कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है. ओके क्योंकि इसमें क्या होता है 10% मॉइस्चर होता है. देन दो हाइड्रोलाइज स्टार्चेस के एग्जांपल हैं एमडेक्स एंड सेल्यूटैब. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत बारी पूछा जाता है कि एमडेक्स क्या है. ओके एंड ऑप्शंस दे दिए जाते हैं. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइड्रोलाइज स्टार्च है ये एक. ओके एमडेक्स एंड सेल्यूटैब विच आर बेसिकली, इनमें क्या होता है 90 to 92% इसमें डेक्सट्रोज होता है एंड 3 to 5% इसमें माल्टोज होता है. ओके एंड ये भी डायरेक्टली कंप्रेसिबल एंड फ्री फ्लोइंग है. सो क्या पढ़े हमने, एक हमने पढ़ा स्टार RX 1500. इट इज़ अ फ्री फ्लोइंग एंड डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च. ऑल्सो द एमडेक्स एंड सेल्यूटैब are free flowing and directly compressible. These materials may be used in place of mannitol. जो mannitol होता है वो क्या होता है च्यूबल टैबलेट्स में यूज़ किया जाता है. ओके तो इसके इनको हम यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ mannitol. ओके इन प्लेस ऑफ ट्यूबल टैबलेट्स में हम मैनिटॉल की जगह इनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनका क्या होता है ये जो डेक्सट्रोज है और जो माल्टोज होता है इनमें, इसलिए एमडेक्स एंड सेल्यूटैब इनको हम क्या कर सकते हैं ट्यूबल टैबलेट्स में मैनिटॉल की जगह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनकी क्या होती है एक स्वीटनेस एंड स्मूथ फीलिंग होती है माउथ में. ओके सो इसलिए हम इसको ट्यूबल टैबलेट्स में मैनिटॉल को ऐड किया जाता है. सो इसलिए स्वीटनिंग एजेंट की तरीके से, डाइलुएंट की तरीके से. सो इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्वीटनेस एंड स्मूथ फीलिंग इन दी माउथ. नेक्स्ट इज मैनिटॉल. सो जो मैनिटॉल है वो क्या है, उसे टैबलेट डाइलुएंट की तरीके से यूज़ किया जाता है बट ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. ओके इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव शुगर एज दी टैबलेट डाइलुएंट. ओके एंड देन बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन, इसकी नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि ये माउथ में आपको एक कूलिंग इफेक्ट देता है. ओके तो इसलिए इसे जो ब्रेथ फ्रेशनिंग कैंडीज़ होती है राइट, जो ब्रेथ फ्रेशनिंग कैंडीज़ मिलती है मार्केट में उसमें क्या किया जाता है, इसे एज अ स्वीटनर ऐड किया जाता है क्योंकि उससे क्या आता है एक ठंडा ठंडा से फीलिंग आती है ना, कूलिंग इफेक्ट दिखता है हमें. तो वो क्यों होता है क्योंकि जो मैनिटॉल होता है उसकी क्या होती है नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन होती है. दैट्स वाई ये क्या करता है आपको ब्रेथ फ्रेशनिंग कैंडीज़ में इसको स्वीटनर की तरीके से यूज़ किया जाता है. मोर ओवर इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत स्लो होती है और ये माउथ में बहुत प्लीजेंट फीलिंग देता है. इसलिए इसे क्या किया जाता है ट्यूबल टैबलेट्स में सबसे ज़्यादा मैनिटॉल यूज़ किया जाता है. Why? Because of its pleasant feeling in the mouth, its slow solubility, and moreover, it gives a cooling effect. Okay, so it is widely used in chewable tablets. Moreover, ये non hygroscopic होता है. सो इसलिए इसे विटामिन फॉर्मुलेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो विटामिन फॉर्मुलेशंस होते हैं उनमें मॉइस्चर सेंसिटिविटी की बहुत प्रॉब्लम होती है और जो मैनिटॉल होता है वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है. एज आई हैव टोल्ड नॉन हाइग्रोस्कोपिक आर दो सब्सटेंसेस जो कि क्या करते हैं एब्जॉर्ब नहीं करते मॉइस्चर को फ्रॉम द सराउंडिंग. सो इसलिए इसे क्या करा जाता है विटामिन फॉर्मुलेशंस में भी यूज़ किया जाता है. देन द नेक्स्ट इज सॉर्बिटॉल. सॉर्बिटॉल इज द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ मैनिटॉल. ओके ये एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है मैनिटॉल का. एंड इससे क्योंकि जो मैनिटॉल है जैसे कि मैंने बताया कि वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव शुगर है डाइलुएंट, तो इसको सॉर्बिटॉल को कभी कभी डाइलुएंट की कॉस्ट को कम करने के लिए मैनिटॉल फॉर्मुलेशंस के साथ कंबाइन कर दिया जाता है. ओके एंड ये दोनों ही जो मैनिटॉल है और जो सॉर्बिटॉल है ये दोनों ही बहुत कम कैलोरिक कंटेंट होता है इनमें और ये नॉन कार्सिनोजेनिक होते हैं. ओके एंड जो आपका सॉर्बिटॉल होता है जैसे हमने मैनिटॉल में पढ़ा था कि वो क्या होता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है. बट जो आपका सॉर्बिटॉल होता है ये अगर ह्यूमिडिटी 65% से ज़्यादा होती है तो ये क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है. ओके एट ह्यूमिडिटी अबव 65% इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक. देन द नेक्स्ट इज सुक्रोज. ओके तो कुछ सुक्रोज बेस्ड डाइलुएंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि कौन कौन से हैं. लाइक शुगर टैब है, इसमें क्या होता है 90 to 93% सुक्रोज होता है प्लस 7 to 10% इन्वर्ट शुगर होता है.
ओके, डाई पैक में 97% सुक्रोज होता है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, इट्स सुक्रोज प्लस 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रिन्स होते हैं. देन द नेक्स्ट इज न्यू टैप, इसमें 95% सुक्रोज होता है एंड 4% इनवर्ट शुगर होता है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉर्नस्टार्च एंड मैग्नीशियम स्टीरेट. ओके, देन लैक्टोज. लैक्टोज जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है डाइलुएंट की तरीके से. हमारी टैबलेट्स में सबसे ज़्यादा लैक्टोज होता है. ओके, एंड देन ये क्या करता है, इट शोज़ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं करता विद मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, चाहे ये हाइड्रस फॉर्म में हो चाहे ये एनहाइड्रस फॉर्म में हो. ये ज़्यादातर ड्रग्स के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता. जो आपका एनहाइड्रस लैक्टोज होता है उसका क्या होता है, एक एडवांटेज होता है ओवर लैक्टोज. क्या एडवांटेज होता है एनहाइड्रस लैक्टोज का, कि वो मेलार्ड रिएक्शन शो नहीं करता. राइट, मेलार्ड रिएक्शन क्या होती है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कि क्या होती है, अमीनो एसिड्स एंड रिड्यूसिंग शुगर्स के बीच में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ब्राउन कलर आ जाता है. ओके, सो ये जो एनहाइड्रस लैक्टोज अगर हम ऐड करते हैं तो उसका ये एडवांटेज होता है कि उसमें आपकी मेलार्ड रिएक्शन नहीं होती, जिससे कि क्या हो जाता है, कुछ ड्रग्स में ब्राउनिंग एंड डिसकलरेशन हो जाता है. ओके, तो टू ग्रेड्स ऑफ लैक्टोज होते हैं. एक होता है 60 to 80 मैश जो कि कोर्स होता है, एंड 80 to 100 मैश जो कि रेगुलर ग्रेड का होता है. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज डेक्सट्रोज. डेक्सट्रोज जो है ये अवेलेबल होता है अंडर द नेम सेलुलोज सॉरी, इट्स सेलुलोज, एंड ये 2 फॉर्म्स में आता है, एज हाइड्रेट एंड एनहाइड्रस फॉर्म, जब लो मॉइस्चर कंटेंट्स की ज़रूरत होती है. ओके, एंड देन इज द माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज. इसका जो ट्रेड नेम है वो है एविसल. ओके, एंड इसे भी एक्सीपिएंट के तरीके से यूज़ किया जाता है. ओके, एंड ये 2 टैबलेट ग्रेड्स हैं. एक तो है PH101 विच इज़ फॉर पाउडर एंड PH102 दैट इज़ फॉर ग्रैन्यूल्स. So that's it about the diluents. So we have discussed that what are diluents, what are the ideal characteristics of a diluent, and we have also discussed about the compatibility of the diluent with the drugs, and then we have discussed about the various diluents used in the tablet formulations. So if you like my video, so please do like and do subscribe my channel, comment your views. Thank you very much.